Have you got the what are the other facilities that they're giving in Shell 2,700? Actually, this is like that. They're not acquiring for the firing range. Firing range is one of the activities which is going to take place in that 2,700 acres. It is not acquired, that 2,700 acres is not being acquired for firing range. Firing range is one of the activities inside the 2,700 acres of land. Have you got the blueprint? No. So how are we offering the state government, the BSF, that area? Family already affected. Plus, about ni Dumbo Hydel project ni, bro victim party of the Sar. Therefore, generation to generation by Kai Babok Soka, and what straight to Abo, Manila Meglat, Gosila Meglat, Abgachine, and the discount to Mana here to Andalon Penny. Tabo ozaga khaikan ke tamo le chini norogni khoting nai Chin bagan khotiu nai bro khotiu nai bro jaga thangi chung drau nai thang thai jaga kuri chini abon ba e samoisa som chuno bochin jaga no chungriya ni chung Andalon chu khene nang ke chung tre pathanai high court pathanai supreme court pathanai chung jo toni lewo thanga ke no chung jo tono dabi no ke to mane ya ke thoibo na mari nai brain ko na mari nai guli ko na macha nai ta norok tini oro kuno dol nida na organization na joto bodol da organization ya chung do ni joto tibra sa joto tibra YBS ko bo ke thangsa kai sabo khaika All NGOs of the YBA, BSK, BSF. sabo khaika YBA tongo BS ko tongo BS improve tho tongo siklam tho tongo chudrim tho tongo pa do tom tho last na chung Andalon pen Ceremony motabico, monosilendra, ceremony ketontico, elite dulecho, 2007 ekor. Aboke 8 kilometer by 4 kilometer, burao already verification koye, abono burao. Just kenman boye, to final day. To abomoye ang tinio, YBA ni boros deyo ang sanay yung sudo YBA ya, yung BSM, BSCO, Sudrinko, all NGOs yung United Ongye, o je hiring range demono opus kenai yung nang setre प्रतिवाद kenai hiye, tao yung je lai nei ma July 3 tario NGM tio yung deputation nilai ha, ke tinio ke chief minister tio yung NGM ni pro de dia deputation nilai se, angmoye yung chini young group association so for responsibility ya pa Tripura sarono ang request kenim tu chini kongbaran thakawo bode kiye jobordasti kiye chini
फायरिंग रेंज केनेमान बये बो जागाओ डिसाइड केनमन बये जो तो चिनी त्रिपुरा रावनो त्रिपुरा थारावनो रावो नांगो मान बये सहयोगिता केनमान बये ताबोयनो जों रो दिनियो जुदो मात्र यांग्रो एसोसिएशन BSQ BSM टू ड्रीम थोया जों पॉलिटिकल पार्टी बोंया धर्म बोंया जो तो चिनी एजुकेटेड पार्सन आगे चिनी सकल अंशेर मानुष दिए जों मिलिए से बहुत दिनियो आंदोलन केमसे रोकुनो पार्टी धर्म क्रय जों जो ब्रो मिले से आंदोलन केमसे जदि से बरं याके जों दरकार के हाई कोर्ट को थानाय सुप्रीम कोर्ट को थानाय दिए जों अलरेडी डिसीजन लामबये आं त्रे चिनी जे त्रिपुरा थारावनो तागो की बारिश ने बीच गया है अभी के साथ क्या डिमांड था और किससे आया नहीं डिमांड है कि ये हमेशा त्रिपुरा लोगों के साथ आप लोग खिलवाड़ करते क्या दरकार है यहाँ में फायरिंग रेंज का 2700 एकड़ तो हम लोग यहाँ में आए सॉलिडारिटी के लिए। आज आपने देखा होगा कि यहाँ में कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं था, कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, सिर्फ थानचा था और हम लोग आए इसमें एक जॉइंटली अपील करने के लिए एक ऐसा कदम जिसमें आप 2700 एकड़ ज़मीन आप हटा लेते हो और उसके बाद आप घर आदमी को घर से बाहर हटा देते हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो ये कहाँ का न्याय है? तो इसके लिए हम लोग आए थे। और 2700 एकड़ कोई फायरिंग रेंज को दरकार नहीं है। फायरिंग रेंज के नाम में यहाँ में अगर आप स्विमिंग पूल खोलोगे, छोटा सा गोल्फ कोर्स रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा, बार रहेगा, ऑफिसर्स के लिए बंगला रहेगा और थोड़ा जगह में आपने फायरिंग रेंज खोला और आप बोलेंगे कि हमने फायरिंग रेंज के लिए लिया, तो ये गलत बात है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि जब भी कोई इतना बड़ा ज़मीन का डिमांड करता है, आप पूछिए कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। आप पूरा 2700 में फायरिंग रेंज करेंगे, क्योंकि अगर 2700 एकड़ में आपने फायरिंग रेंज किया तो दुनिया का सबसे बड़ा फायरिंग रेंज होगा। तो ब्लूप्रिंट है आपके पास, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा उनके पास नहीं है। मैंने कहा अगर उन्होंने आपको बताया नहीं कि उसने किसके लिए उनको 2700 एकड़ चाहिए, तो आपको पूछना चाहिए था कि फायरिंग रेंज का कितना नहीं चाहिए। आपने कैसे बोल दिया कि उन्होंने 2700 आपने मान लिया। दूसरा बात, मैंने पूछा है कि कॉम्पनसेशन क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कॉम्पनसेशन क्या होगा। मैंने कहा अगर आप किसी का घर लेते हो तो पहले प्राइस फिक्स करते हो, उसी के बाद घर में घुसते हो। आप यहाँ में घर में घुस के जगह लेने के बाद सोचेंगे कि क्या प्राइस देना है, कॉम्पनसेशन का आपका क्या पैकेज है। अगर हमारे लोग हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमको कुछ पैसा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? बोला अभी तक डिसाइड नहीं। तीसरा बात है, मैंने कहा कि BSF को यहाँ में क्या दरकार है? आप BSF को बॉर्डर के सामने रखिए, सोनामुरा है, बहुत जगह है, वहाँ में उनको अगर रखना तो वहाँ में रखिए, यहाँ में क्या दरकार है? इससे पहले भी अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड में भी हाँ डिनाई किया है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मैं राइटिंग में मैंने ये उनको मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ आज ही, अभी जाकर, और आज ही मैं दूंगा ये राइटिंग में ये चिट्ठी, और मुझे रिप्लाई भी चाहिए इन राइटिंग, और ऑरली नहीं, इन राइटिंग मुझे चाहिए रिप्लाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। जो गलती पहले हुआ है, जैसे डुम्बुर में हुआ, जो गलती बहुत जगह में हुआ है, क्योंकि पट्टा हम लोग के पास नहीं है, लेकिन ये जगह का मालिक ब्रू लोग है, ये ब्रू का जगह है, ये तिप्रसा का जगह है। आप ऐसे करके हमको जब मन में आए आप नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है, आप अगरतला में 1 एकड़ जमीन लेके देखिए, नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ में आकर आप 2700 एकड़ जमीन लेना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये अपने जाति के लिए है। और जब भी हमको लगेगा कि त्रिपुरा के लोग, इसमें बंगाली भी है, रियांग है, चकमा है, देवबर्मा है, त्रिपुरा है, पलॉय है, जब भी मुझे लगेगा कि त्रिपुरा के लोगों को
मणिपुरी है, तो कुछ खतरा है। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मैं तो आके बोलूँगा, और मैं पहले वीर विक्रम का नाती बन के बोलूँगा, उसके बाद कोई पॉलिटिकल लीडर बन के बोलूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं हूँ रुपया कमाने के लिए, मैं आया हूँ सेवा करने के लिए, और मैं चुप नहीं बैठने वाला। आज खुद एडीसी का ईएम राजेंद्र रियांग आपके सामने, हाँ, क्या बोलेंगे? अच्छा बात है ना, राजेंद्र रियांग आया, वो ईएम है, पूरा जिंदगी तो ईएम नहीं रहेगा ना वो। मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, पूरा जिंदगी तो मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा, लेकिन जब जब हम लोग का दफा को, जब जब हम लोग को बदल को प्रॉब्लम होगा, हमको अपना पार्टी को पीछे रखना चाहिए और जाति के बारे में बात करना चाहिए। जब जब हिंदुस्तान में कोई खतरा होगा पाकिस्तान से, हमको कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम को छोड़ के हिंदुस्तान के बारे में बोलना चाहिए। जब जब त्रिपुरा में कुछ प्रॉब्लम होगा, तिपरासा बंगाली को छोड़ के त्रिपुरा के बारे में बोलना चाहिए। आज प्रॉब्लम है तिपरासा का बारे, तो अपना पार्टी को छोड़ो और जाति के बारे में बोलो। तो वो आए आज, अच्छा बात है, मुझे भी अच्छा लगा। आईएनपीटी के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, मैं भी था, कांग्रेस के लोग भी थे। पॉइंट है कि राजनीति ने हमको सिर्फ बांटा है, क्योंकि हमारे बीच में ढांचा नहीं है। जिस दिन ढांचा आ जाए ना, 2 मिनट में ये लोग अपना लाइन में आ जाएंगे। हम लोग के बीच में ढांचा नहीं है, इसके लिए लोग ये करते हैं। डेपुटेशन के समय एसडीएम और पीएम की तरफ से क्या? मैंने तो ऑलरेडी तो उन्होंने सिंपैथी दिखाया है, लेकिन मैं राइटिंग में चाहता हूँ ये, क्योंकि आजकल आदमी बोलता कुछ है लेकिन ऑर्डर आने के टाइम कुछ और लगता है। मुझे अब ब्लैक एंड व्हाइट में विश्वास चाहिए कि ये होगा कि नहीं, और अगर दरकार है, राजेंद्र रियांग ने बोलता कि यहाँ में अगर गोली मारा तो सबसे पहले गोली उसको लगेगा। ये सब गोली मारने का दरकार नहीं है। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं इस विषय में, उनको हमको आइडेंटिफाई करके सवाल पूछना चाहिए कि आपको एमएलए लीडर किसने बनाया? हमारा वोट ने बनाया, ना कि दिल्ली ने बनाया। तो दिल्ली हमको ना बोले कि त्रिपुरा के बारे क्या ठीक है। हम लोग जानते हैं कि त्रिपुरा के बारे क्या ठीक है। और यहाँ में कंचनपुर में इस एरिया में हम लोग ये फायरिंग रेंज, जिसमें बार है, जिसमें रेस्टोरेंट है, जिसमें गोल्फ कोर्स है, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, हेलीपैड है, हम होने नहीं देंगे। अगर फायरिंग रेंज का दरकार था तो आपको इतना ज़मीन का दरकार नहीं। और एक बार महाराज, जम्मू कश्मीर के ऊपर से जो 370 उठा दी गए है, उसका बाद जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो 371A और 371B, ये भी संकट में पेशन अरेस्ट हो रहा है, ये भी क्या आप इस मुद्दे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे अच्छा होगा अगर इंडिया का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल दे कि जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट से बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे संग हैं, और हम उनको आश्वासन देते हैं कि आने वाले 5 साल में हम नॉर्थ ईस्ट को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आश्वासन दिया है उसको नहीं हटाएंगे। अगर वो पार्लियामेंट में आकर बोल देते हैं और हमको गारंटी देते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक वो लोग गारंटी नहीं देंगे, शंका तो रहेगी। जब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे नहीं बोलेंगे, शंका दिल के अंदर रहेगा, क्योंकि दिल्ली में उनके पास बहुमत है, वो जो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर उन्होंने इसी तरीके से पास करने का कोशिश किया, तब सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगा, और बाहर के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। हर चीज को आप बुलडोज नहीं कर सकते। प्यार से बोलो, समझ जाएंगे। जबरदस्ती किया तो उसका इफेक्ट उल्टा हो। इस मुद्दे में